Hello everyone, welcome back to Gyanbodh Academy. I am Madhulika. Today is 11th of December and I am back with again important newspaper discussion and editorials. So I have a very important article from the Times of India and it is about the Maratha reservation. It is about the Maratha reservation, and it is a very important aspect because it is recently in news from the November month itself. So, before we jump into the discussion, I would like to give a brief introduction to the topic. Firstly, I would say that in 2016, there was the first proposal for the Maratha reservations, means the Maratha people, they appraised their consent for their willingness. They showed their willingness for reservation in India. For reservation for what? First for education and then second for the jobs. Then in 2018, what happened? There was an act that was Maratha State Reservation Socially and Economically Act. This kind of act was there, which was turned down by the Supreme Court. Means ये act को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ऐसा कोई रिजर्वेशन मराठास को नहीं दिया जाएगा. फिर आज के टाइम पे 2023 में अगेन दिस इशू ऑफ रिजर्वेशन रिगार्डिंग मी मराठास इट हैज़ come over. In especially the agitation, the protest has been there in Maharashtra. So it is a very important topic. Let us move forward and read the article. So of this brief background, and let us now read. Social engineering wrong answer to dominant group quota agitation in Maharashtra and elsewhere. So what is here dominant group? It is talking about the Marathas. Why Marathas are the dominant group? Dominant मतलब जो बहुत ही जो पावरफुल हो, जो डोमिनेटिंग हो अदर रिगार्डिंग अदर ग्रुप्स. क्यों मराठास को डोमिनेंट ग्रुप कहते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत समय तक मराठास ने महाराष्ट्र पे राज किया है और वो पावरफुल है. वो एक कोई किंग से कम या कुछ वेल्दी बैकग्राउंड से कम नहीं बिलोंग करते हैं. That is why quota, we all know quota means reservation. Agitation means any kind of protest, and in Maharashtra or elsewhere. So it is talking about the reservations that the Marathas have raised and protested against in Maharashtra and elsewhere. Elsewhere मतलब जहाँ भी मराठा पीपल रहते हैं वो लोग इस प्रोटेस्ट में खड़े हुए हैं कि उनको एजुकेशन के फील्ड में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और जॉब्स में रिजर्वेशंस चाहिए. कितना परसेंट का डिमांड किया वो लोग? 13% का रिजर्वेशन का डिमांड किए. लेट अस रीड फॉरवर्ड व्हाट इज व्हाट. So let me explain. First, let me read out. India's many post-mandal reservation agitations have appended the original aim of providing temporary support to historically disadvantaged group. Agitations are often carried out by socially and politically influenced groups aiming to use reservation as a route to enhance job prospects. On the other side, political parties are weaponizing caste survey to offer false solution to frustrated youth. देखिए, what it is talking about the Mandal Commission. What is Mandal Commission? We all know. What was Mandal Commission? It was a group of people. A commission was made wherein the Commission provided for the reservations for the first time in India. इसमें से मंडल कमीशन में मेंशन किया गया था कि जो भी सोशली बैकवर्ड पीपल हैं, सोशली और विच कम्स फ्रॉम अ वेरी बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी who has been reaped the benefits of the society or the people or the government or the resources as a whole. जो जातिवादी है जिसके वजह से आप लोग देखते हैं ST हुए, SC हुए, उन लोगों को रिजर्वेशंस क्यों दिया गया? क्योंकि माना जाता है वो लोग बैकवर्ड क्लास के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल. हालांकि आज टाइम पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी कंसिडर किया जा रहा है, जो फाइनेंशियली नहीं स्ट्रॉन्ग है उनको भी आज के टाइम पे. लेकिन जब मंडल कमीशन बना था तब बोला गया था रिजर्वेशंस विल बी बेस्ड ऑन सोशली बैकवर्ड पीपल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड पीपल. तो हियर इट इज़ टेलिंग पोस्ट मंडल आफ्टर जो मंडल कमीशन था जिसके बाद रिजर्वेशंस हुआ उसके बाद बहुत सारे एजिटेशंस यानी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुआ. हम लोग सब जानते हैं कि जैसे रिजर्वेशंस का बात हुआ था तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था कि रिजर्वेशंस ये लोग को दिया जाएगा, STs SC एंड अदर पीपल. तो इस बात से पूरा देश अपसेट था सरकार से कि ऐसा कैसे हो सकता है. तो एजिटेशंस हैव बीन देयर
फॉर हिस्ट्री मीन्स सिंस टाइम्स ऑफ हिस्ट्री मीन्स बहुत पहले से सब चला रहा है फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। डिसएडवांटेज ग्रुप मतलब जो भी सोशली बैकवर्ड पीपल है, जो आपका जितना भी है, जिन लोग को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो एसटी हुए, एससी हुए, ओबीसीज हुए या अदर बैकवर्ड क्लासेस जो भी हुए, वो लोग को दे आर कॉल्ड अ डिसएडवांटेज ग्रुप। उन लोग को एडवांटेजेस नहीं मिलता, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि दे हैव नॉट रीप द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। Agitations are often carried out socially and politically influenced groups aiming to use reservation as a route to enhance job prospect। तो एजिटेशन मतलब ये जो प्रोटेस्ट होता है उसको आग लगाना, इंस्टिगेट करने का काम किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। क्यों करते हैं वो? आप अक्सर देखते होंगे इलेक्शंस के पहले वो बहुत सारे वायदे करते हैं जनता को वोट्स हासिल करने में। तो जाहिर सी बात है अगर वो रिजर्वेशंस का वायदा करेंगे और अदर थी आप लोग को सीट्स मिलेगा पार्लियामेंट में, महिलाओं को सीट्स मिलेगा, लोअर कास्ट लोग आगे आ सकेंगे, उन लोग का से होगा, उन लोग के लैंग्वेज को यानी अगर उनका लैंग्वेज बंगाली हो, उनका लैंग्वेज मराठी हो, गुजराती हो, तो हम लोग उसको बहुत वैल्यू करेंगे, उसके बेसिस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होगा। तो ऐसे ऐसे वायदे करना, और यही सब होता है, यही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जो प्रोटेस्ट लाता है देश में। और हमेशा से रिजर्वेशंस को एज ए एम यूज़ किया गया ताकि जॉब्स वगैरह को जनरेट किया जा सके हमारे देश में और वोट्स हासिल किया जा सके। On the other hand, political parties are weaponizing caste survey to offer false solution to frustrated youth। मतलब हम लोग को देख रहे हैं कैसे हम लोग के politicians they are using दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन एंड कास्ट सर्वे ताकि वो झूठे वायदे कर सके यूथ से। फ्रस्ट्रेटेड यूथ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जहाँ रिजर्वेशन का बात आता है द यूथ द कंट्री गेट टोटली फ्रस्ट्रेटेड। कास्ट सर्वे यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है, देखिए बिहार में अभी कास्ट सेंसस हुआ था, ठीक है। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहते हैं कि वहाँ पे भी कास्ट सेंसस हो ताकि वहाँ पे कितने परसेंट मराठास है वो डिटेक्ट किया जा सके। अब ये डिटेक्ट हो जाएगा कि कितने परसेंट मराठास हैं, तो इनसे ये पता चलेगा उनको कितना रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए भी, तो कि नहीं कितना देना चाहिए रिजर्वेशन। प्लस ऐसा माना गया कि टोटल 33% मराठास है हमारे देश में, उसमें से उन लोग का वो लोग कहते हैं कि वो लोग का रिप्रेजेंटेशन चाहे वो पार्लियामेंट में या अदर सच जॉब या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन लोग का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, इसीलिए वो लोग अपना रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं। So let us move forward. What is it talking? Marathas reservation continues votes. Maharashtra's politics is a flux because of the unsolved issue of reservation for Marathas. Agitation for reservation issue ultimatums to the state government, which has so far treated even violent protesters with kid gloves. But the state cabinet is not united. Senior members have questioned the policy. तो इसमें बोला जा रहा है जो मराठास का रिजर्वेशन है इट हैज़ बीन कंटिन्यूसली इन न्यूज़, मतलब ये समय से चला रहा है। कैसे 2016 से ये बात छिड़ा था, आज 2023 में फिर से ये बात चढ़ गया। तो दिस पॉलिटिकल इशू in Maharashtra has been an unsolved issue regarding the reservation of Marathas, especially in Maharashtra or elsewhere states where Marathi people are living. So agitators, मतलब protesters for reservation issue ultimatums the state government, which has so far treated even violent protester with kid gloves। तो कैसे हम लोग देख सकते हैं वॉयलेंस बढ़ गया है रिजर्वेशंस को लेकर। वो लोग बार बार अपना से रख रहे हैं कि उन लोग को रिजर्वेशन चाहिए, प्लस महाराष्ट्र की गवर्नमेंट भी उन लोग को वायदे कर रही है। सिर्फ ये सब देखिए आप, जैसे 2024 में इलेक्शंस है, तो इससे पहले ये सब सरकारी तरीका है वोट हासिल करने का, इसलिए सब चल रहा है फिर से। बट द स्टेट कैबिनेट इज़ नॉट यूनाइटेड। सीनियर मेंबर्स हैव क्वेश्चन दी पॉलिसी, मतलब ये रिजर्वेशन देने के खिलाफ है लोग, स्पेशली द सीनियर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर अगेंस्ट इट बिकॉज देर, देखिए एक सिंपल रीज़न है, अगर सब लोगों को देते रहे, जैसे महाराष्ट्र में आपके मराठास रिजर्वेशन मांग रहे हैं, वैसे गुजरात में आपका एक है नहीं, फॉर एग्जांपल आपका जो जाट कम्युनिटी है हरियाणा में, जाट्स वो भी मांग रहे हैं रिजर्वेशन, ये हरियाणा में आता है। इसके अलावा जो गुजरात में पटियाला कम्युनिटी समथिंग लाइक दिस, आई डो नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म, बट ऐसे कुछ कम्युनिटी है गुजरात में, उन लोग भी रिजर्वेशन का वायदा कर रहे हैं कि उनको भी रिजर्वेशन चाहिए। अगर ऐसे ही अब कल को मान लीजिए अब कोलकाता के बंगाली पीपल भी मांगने लगे कि हम लोग को रिजर्वेशन चाहिए, कोलकाता के बंगाली पीपल, तो ऐसे कैसे चलेगा?
कि सब लोगों को, इतने सारे हमारे देश में कास्ट है, इतने सारे धर्म है, तो सबको रिजर्वेशन देते रहेंगे तो फिर कैसे एक प्रॉपर डिवीजन हो पाएगा, या प्रॉपर बेनिफिट सोसाइटी को कैसे मिल पाएगा। फॉर एग्जांपल देते हैं, एक पिज़्ज़ा है, वहाँ पे 4 लोग के बीच डिवाइड होना है, तो 4 लोग के बीच ईजिली डिवाइड हो जाएगा। 4 लोग के बीच पिज़्ज़ा ईजिली डिवाइड हो जाएगा। 4 लोग, मान लीजिए 4 कास्ट है, ST, SC, OBC और आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, 4 लोग के बीच डिवाइड हो गया। अब मान लीजिए 4 के बदले 8 आ गया यहाँ पे, जिसमें जाट्स बोल रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन चाहिए, गुजराती पीपल वो चाहिए, बंगाली पीपल को चाहिए, अब मराठी पीपल को भी चाहिए, तो और ज़्यादा ये कटना पड़ा पिज़्ज़ा, और ज़्यादा सबको स्मॉल 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 हिस्सा मिला। अब 8 से मान लीजिए ये 16 हो गया, तो और ज़्यादा ये पीसेस को काटना पड़ा। तो देख रहे हैं आप, एक कास्ट को कितना कम कम बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे में क्या हमारा सोसाइटी या क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एम पूरा हो सकेगा कि इन लोगों को एक प्रॉपर स्टेटस में लाना है? क्यों रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या है? कि सब लोग को, मतलब जो पिछड़े वर्ग है हमारे सोसाइटी के, उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। अगर इतना कम हम लोग को फ़ायदा मिलेगा तो क्या वो लोग मेन स्ट्रीम में आ सकेंगे? नहीं, ज़ाहिर सा बात है, नहीं आ पाएंगे। सबको हम लोग रिजर्वेशन देते रहेंगे तो बेनिफिट किसी को नहीं होने वाला है। इसीलिए इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सीनियर मेंबर्स, जो पढ़े लिखे कैबिनेट्स है, दे आर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ गिविंग रिजर्वेशन टू मराठास। देन रीडिंग फॉरवर्ड, रनिंग एफ फाउल ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी के कंटेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है, लेट अस सी। इन May 2021 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन अ स्टेट government decision to provide reservation to Marathas. The judgment resetted on reasoning similar to other such cases. The judiciary in general is unconvinced about the need to breach the 50% cap on group-based reservation. Exceeding the cap is only possible if government are able to show a compelling case through the provision of credible data. None of the dominant group agitation that have been supported by political parties have managed to do so. That's unsurprising. Dominance and disadvantageousness doesn't usually coexist. तो इसमें क्या बोला जा रहा है, जुडिशरी के कंटेक्स्ट में 2022 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दे स्ट्रक डाउन अ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन। क्या वो एक्ट के बारे में बोला जा रहा है, मराठा स्टेट रिजर्वेशन एक्ट, इस एक्ट के बारे में बोला जा रहा है। उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन था वहाँ पे कि उन लोग को, मराठीज़ को रिजर्वेशन दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट गया कि नहीं, ऐसा कोई एक्ट होना ही नहीं चाहिए कि जिसमें मराठी पीपल को रिजर्वेशन देना चाहिए। कहाँ, जॉब्स और एडुकेशन में। आई थिंक सो जॉब्स के लिए मतलब एडुकेशन के लिए 12% रिजर्वेशन मिल रहा था उन लोग को, और 13% रिजर्वेशन जॉब्स के लिए मिल रहा था इस एक्ट के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है, 2021 में। उसके अलावा द जजमेंट रीसेटेड ऑन रीजनिंग सिमिलर टू अदर सच केसेस। सिमिलर टू अदर केसेस मतलब जैसे आपको बोले जाट्स है हरियाणा में, वो रिजर्वेशन का बात करते हैं, गुजरात में एक ग्रुप है वो भी रिजर्वेशन। तो ऐसे ऐसे सारे केसेस को वो सुप्रीम कोर्ट रद्द करते गए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है। द जुडिशरी इन जनरल is unconvinced about the need to breach the 50% cap on ground based reservation. तो एक 50% सीलिंग लगाया गया है, 50% सीलिंग लगाया गया है रिजर्वेशन का, कि इससे ज़्यादा हम लोग दे नहीं सकते। एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं कि जो महाराष्ट्र है उसमें 52% रिजर्वेशन दिया गया है। ये ऑलरेडी 50% सीलिंग, मतलब 50% बेंचमार्क को पास करके 52% रिजर्वेशन दिया गया है। इसमें से कुछ STs है, इससे SCs है, OBC है, या अदर क्लासेस है। अब मान के चलिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझने की कोशिश कीजिए 50% सीलिंग क्या होता है। कि टोटल हम लोग महाराष्ट्र को कंसिडर करते हैं, उसमें 52% टोटल रिजर्वेशन दिया है, जिसमें STs आते हैं, SCs आते हैं, OBC आते हैं, और बाकी जो जो कास्ट है, टोटल मिला के 52% रिजर्वेशन दिया गया है। अब ये लोगों का कहना है, अब क्या हुआ, अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस आज के समय में ऐड कर दिया गया। उनका कितना परसेंट रिजर्वेशन है, 10% रिजर्वेशन है। ठीक है, उसके अलावा अब ये लोगों का कहना है अब हम मराठी लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। कितना परसेंट रिजर्वेशन, 13%। टोटल कितना हो गया, 52 + 10 + 13, 52% ओरिजिनली था, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और अब 13% मराठी पीपल को चाहिए। तो सी द लिमिट ऑफ रिजर्वेशन दे आर आस्किंग फॉर।
तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, 72% रिजर्वेशन हो जाएगा। तो देखिए 50% हम लिमिट सेट किया गया था, इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र में 72% हो जाएगा। ये क्या हम लोग के जो लॉ ऑर्डर है उसके अगेंस्ट है। जब सरकार का कहना या जुडिशरी का कहना है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं एक्सटेंड करना चाहिए, महाराष्ट्र में इतना एक्सटेंड हो जाएगा, तो विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मंडल कमीशन। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल है। Exceeding the cap is only possible if government are able to show a compelling case through the provision ऑफ क्रेडिबल डेटा। मतलब बोल रहा है अगर इस कैप को, मतलब 50% वाला से ज़्यादा अगर रिजर्वेशन को ले जाना है तो गवर्नमेंट को कोई स्पेशल डेटा दिखाना होगा कि सच में ज़रूरत है कि रिजर्वेशन का, कि ऐसे ही बस वायदे किए जा रही है। नन ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप एजिटेशंस दैट हैव बीन सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज हैव मैनेज टू डू सो। मतलब ऐसा कोई डेटा अवेलेबल नहीं है कि सच में दे आर इन नीड ऑफ रिजर्वेशन। नीड ऑफ रिजर्वेशन मतलब आप देखिए मराठास को, पहले भी वो महाराष्ट्र में बहुत रूल कर चुके हैं, तो ना वो इकोनॉमिकली वीक है ना पॉलिटिकली वो वीक है ना, मतलब राजा जैसा वो लोग रहे हैं, तो कैसे वो पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली वीक है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड इकोनॉमिकल ग्रुप्स। सो वो उन लोग को रिजर्वेशन का ज़रूरत नहीं। हमारा एम क्या है, सोशली बैकवर्ड पीपल या इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, तो उन लोगों को हम लोग रिजर्वेशन देंगे। तो ये नया कंसेप्ट इज़ रॉन्ग। So that's surprising. None of the political parties or government is able to show the proper data. Dominant and disadvantaged groups do not usually coexist. A pan-India problem. Let us see in this perspective. The unwillingness of political parties to firmly deal with these demands means that the problem lurks just beneath the surface. In Tamil Nadu, representatives of Vanyards continue to push the state government apart. The apex court disallowed a law that carved out of a sub-quota for them. The problem cuts across region, with dominant group agitation having their roots in what they see as पुअर इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव। तो देखिए एक तमिलनाडु में भी रिजर्वेशंस को लेकर या रिप्रेजेंटेशन को लेकर ये जो ग्रुप है वनियार्स, उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, रिजर्वेशन चाहिए था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कट डाउन कर दिया कि ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा हम लोगों को। नेक्स्ट रीडिंग दी लास्ट पैराग्राफ। वेट, मोर कोटास वोंट क्रिएट जॉब्स। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट मतलब है रिजर्वेशन इज़ नॉट द ओनली नीड दैट इज़ रिक्वायर्ड। कोई अदर थिंग भी हो सकता है जो कि वो लोग के फेवर में किया जा सकता है। हर समय रिजर्वेशंस जॉब नहीं दिलाएगा, कहने का मतलब ये है। इंडियाज़ एम्प्लॉयमेंट मार्केट इज़ नॉट क्रिएटिंग इनफ पाथवे फॉर फास्टर अपवर्ड मोबिलिटी। इट्स स्ट्रक्चर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स and it's not going to be solved by social engineering. Around 79% of the workforce is either self-employed or in casual labor. Relatively, a few of the remaining employed are in government. Additional jobs have to come from private sector. This means that private investment, that's where political parties need to focus. तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स और पॉलिटिकल प्राइवेट सेक्टर पे फोकस डाला जा रहा है। हर समय एक रिजर्वेशन देना ही सोल्यूशन नहीं है जॉब जनरेट करने का। रिजर्वेशन तो हमारे स्टेट्स में हमारे देश में ऑलरेडी बहुत दिया गया है मंडल कमीशन एंड ऑल के द्वारा, जो भी है। और आप देख रहे हैं साल ब साल उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है, हर 10 साल में इंक्रीज़ होते जा रहा है रिजर्वेशन। पर क्या हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है? नहीं, आज भी हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे हाई है। और रिजर्वेशन इज़ नॉट द ओनली नीड। कुछ अलग से किया जा सकता है, सरकार अलग नीति, अलग योजना, अलग स्कीम बना सकते हैं ताकि महाराष्ट्र पीपल का इशू सॉल्व हो सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।